Yes, good morning to all of you. Take out your English literature book, page number 32. All of you, take out your English literature book, page number 32. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Okay. So in yesterday class, we have already discussed about the chapter, the helpful young man. And today also we will discuss this chapter and proceed forward in this chapter only. Okay. So we have already discussed up to page number 31. Today we will start from page number 32. So are you all ready with your book? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So shall we start? Wait a second. Wait a second. Wait for 1 minute. The helpful young man. So we have already discussed that all the 6 brothers of the youngest man had seated with him, and they convinced their father to uh, to throw out the young man from the house, as they were scared about the hiring of the property. Their father will give son. So they together make a plan, and they convince their father to throw him out of the house. After some time, वो एक जंगल जाता है, जंगल में जाकर के उसे एक बक मिलता है, whom he helped from the whom he saved the life from the hunters. तो आगे फिर क्या हुआ देखते हैं हम लोग, ठीक है? Come out now. They have gone away. Now the young man is saying to the buck that come out now. The hunters has gone away. The buck thanked him and promised to help him when he was in distress. Now, after coming out, the buck has thanked to the young man and promised him that whenever he will be in distress, he will be in problem, the buck will definitely help him. The boy continued his journey. इसके बाद boy जो था वो अपना journey continue करने लगा. After some time he heard a cry, but during his journey again he heard a cry. He stopped and looked in the direction from where the cry had come. वो थोड़ी देर के लिए रुका और वो उसी डायरेक्शन में देखने लगा. From where the voice of crying is come, he discovered that a jackal was being chased by a hunter. Again, he discovered that this time there is a jackal who has been chased by the hunters. इस बार jackal था जिसको hunters chase कर रहे थे. Chase कर रहे थे मतलब उसका पीछा कर रहे थे. The jackal approached him for help. Again, jackal approached the young man for help. Please help me. Please save my life. Some hunters are chasing me. The young man helped it too. Again, as we all know that the young man was helpful, so he again helped the jackal too. The jackal to help him in his hour of need. After saving the life of the jackal, jackal also promised the young man that whenever he need any help, he will help him. The young man kept. यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया अच्छे से? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. The young man kept on wandering for many
डेज। इसी तरह से यंग मैन जो था अपना जर्नी कंटिन्यू करता रहा, इधर उधर भटकता रहा, क्योंकि कहीं तो उसके पास जाने के लिए था नहीं। ही हैज नोवेयर सम डिस्टिंक्ट डेस्टिनेशन वेयर ही हैज टू गो, सो वो इधर उधर कंटिन्यू वॉन्डरिंग कर रहा था, ही वाज कीप वॉन्डरिंग। इसी तरह से समय बीतता चला गया। ही वाज टायर्ड एंड हंग्री एंड वांटेड टू टेक सम रेस्ट, बट नाउ ही वाज टायर्ड एंड वांट टू टेक सम रेस्ट। He spotted a strange place. He decided to go inside the place and meet its owner. अचानक से उसे एक स्ट्रेंज प्लेस दिखा, उसने एक स्ट्रेंज प्लेस खोजा, उसने डिसाइड किया कि वो उस पैलेस दिखा उसको, पैलेस, वो उसने डिसाइड किया कि वो इस पैलेस के अंदर जाएगा और इसके ओनर से बात करेगा। The palace belonged to a princess who was very beautiful, and guess what? The palace is belongs to a princess who was very beautiful। एक बहुत ब्यूटीफुल प्रिंसेस थी और वो जो पैलेस था वो उसी प्रिंसेस का था। She was famous for a magic mirror, and that beautiful princess was very much famous, and famous for what? For her magic mirror। She could see everything in it, और वो उस मैजिक मिरर में हर चीज देख सकती थी। Everything she could see। She had proclaimed that she would marry the man who could evade his reflection in his magic mirror। और उसने इस बात का अनाउंसमेंट किया था, उस ब्यूटीफुल प्रिंसेस ने इस बात का अनाउंसमेंट किया था कि मैं उसी मैन से शादी करूंगी जो मैन अपने रिफ्लेक्शन को मेरे मैजिक मिरर से बचा लेगा। मतलब उस मैजिक मिरर में उसको सब कुछ दिख जाता था, तो वो सब कुछ देख सकती थी कि कौन आदमी कहाँ पर है, जिसको वो देखना चाहेगी वो देख सकती थी। तो इसीलिए वो बोली कि इस मैजिक मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को आने से जो आदमी बचा लेगा हम उसी से शादी कर लेंगे। बट ही वुड बी beheaded if traced in the mirror, but there is one condition: if you want to marry me, first you have to hide your reflection in my magic mirror, but if you are traced in my magic mirror then definitely you will be beheaded। मीन्स पहले तो अगर उस प्रिंसेस ने अनाउंसमेंट किया कि मैं उस आदमी से शादी कर लूंगी जो इस मिरर में आने से बच जाएगा जिसका रिफ्लेक्शन, लेकिन अगर उसका रिफ्लेक्शन इस मिरर में आ जाता है तो उसके सर को काट दिया जाएगा, beheaded कर दिया जाएगा, उसके हेड को बॉडी से अलग कर दिया जाएगा। The young man saw human skulls of many young men who had failed in this adventurous task। जब वो यंग मैन उस पैलेस में गया तो उसने देखा कि वहां बहुत सारे यंग मैन के हेड पड़े हुए थे, जो कौन थे, जो इससे शादी करने आए थे लेकिन अपने रिफ्लेक्शन को उस मिरर में आने से बचा नहीं पाए, तो उसको बिहेडेड कर दिया गया था। तो उस तरह के बहुत सारे ह्यूमन स्कल वहां पे पड़े हुए थे। बट ही वॉज नॉट अफ्रेड, लेकिन ये देख करके वो जो यंग मैन था वो डरा नहीं। हुज माइक इज एक्टिव हियर? काव्या कुमारी, काव्या कुमारी, यस। नाउ उसके बाद क्या हुआ, उस ह्यूमन स्कल को देख करके वो डरा नहीं। He went to the princess fearlessly and accepted the challenge। वो उस प्रिंसेस के पास बिना डरे गया और उसने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। Now that you have come, the princess smiled। Do you know the conditions? Now the princess started threatening him। She said, okay, that you have come here, you announced my you listened my announcement, okay, that you come here, but did you know the condition apart from that? क्या तुम उस कंडीशन को जानते हो? Of course was his reply। उसने बोला yes, of course I know the condition, that you beheaded the person whose reflection you will get in your magic mirror। All right, hide yourself tonight। Her voice was a sharp and a double-edged dagger। ओके तो अब वो बोली कि ठीक है, आज की रात, ठीक है, आज की रात तुम अपने आप को हाइड करो। लेकिन जब वो बोल रही थी
हाइड योर सेल्फ टू नाइट। तब उसके वॉइस में एक शार्पनेस थी, या फिर डबल एज ड्रैगर हम जो बोल सकते हैं, मतलब कि वो अपने वॉइस के टोन से ये समझाना चाह रही थी कि ठीक है तुम छुपो, हम देखते हैं कि तुम कहाँ छुपेगा, और बहुत मतलब कनिंग तरीके से वो बात कर रही थी। एट नाइट द यंग मैन वेंट टू द सी शोर एंड कॉल्ड फोर्थ द फिश फॉर हेल्प। रात में उस यंग मैन ने क्या किया, उस ओशियन के पास गया, उस सी के पास गया जहां पे उस फिश ने उसको बोला था कि व्हेनेवर यू नीड सम हेल्प आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो उस फिश के पास वो जाकर के उससे उस फिश से उस यंग मैन ने हेल्प मांगा। श्योर श्योर सेड द फिश, आई विल हाइड यू इन माय स्टमक एंड गो डीप इन द ओशियन। उस फिश ने क्या कहा कि श्योर आई विल हेल्प यू, आई विल हाइड यू इन माय स्टमक, मैं तुम्हें अपने स्टमक में छिपा लूंगी और उसके बाद आई विल गो डीप इनसाइड द सी, मैं फिर ओशियन के एकदम नीचे चली जाऊंगी। वहां पे उस प्रिंसेस का मैजिक मिरर काम नहीं करेगा, तुम उसके रिफ्लेक्शन में नहीं आओगे। The princess took up the mirror. She rotated it in every direction. At last, she succeeded in pressing him. In the morning, when the young man came, she told him his hiding place. अगेन क्या हुआ कि प्रिंसेस ने अपना मिरर को उठाया, सी फ्लिप हर मिरर इन ऑल द डायरेक्शन, उसने सारे डायरेक्शन में अपने मिरर को घुमाया, और फिर एट लास्ट उसको सफलता मिल गई। शी सक्सीडेड, वो क्या सफलता उसको मिली, उसने सर्च कर लिया कि यंग मैन जो है वो कहाँ छिपा हुआ है, और मॉर्निंग में जब यंग मैन उसके पास आया तो शी टोल्ड हिम द हिज हाइडिंग प्लेस, उसने उसको अपने उसके हाइडिंग प्लेस के बारे में बता दिया। Should you be beheaded now? Now the princess is asking to the young man. Now should I behead you? क्या मैं तुम्हारे सर को धड़ से अलग कर दूं? The princess paused for a moment and said. उसके बाद प्रिंसेस थोड़ी देर के लिए रुकी और बोली, Well, you appear to be an interesting person. I give you another chance. लेकिन इतना बोलने के बाद फिर वो प्रिंसेस थोड़ी देर रुकी और बोली, लेकिन तुम मुझे थोड़े इंटरेस्टिंग इंसान लग रहे हो, सो आई वांट टू गिव यू वन मोर चांस, मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहती हूँ। गो एंड हाइड योरसेल्फ अगेन। दिस टाइम द यंग मैन वेंट टू द वुड एंड कॉल्ड फॉर द बक। इस बार यंग मैन कहाँ गया, वापस से उस फॉरेस्ट में गया और उसने ही कॉल्ड द ब्लैक बग, जिसका हेल्प उसने किया था। Hello, master. What can I do for you? Asked the bug. The bug asked to the young man, Yes, hello, master. How can I help you? I had promised you that I will help you whenever you need, and today you need my help. So tell me, how can I help you? Oh, hearing the whole story, it said, Master, sit on my horn. I will take you to the remote hills. उसके बाद उस यंग मैन ने बक को सारी स्टोरी सुना दी। तो बक ने कहा कि ओके कोई बात नहीं है, तुम मेरे हॉर्न पे बैठ जाओ, मेरे सिंग पे बैठ जाओ, एंड आई विल टेक यू टू द रिमोट हिल्स, मैं हिल के किसी रिमोट एरिया में तुम्हें ले जाऊंगी, वहां पर तुम उस प्रिंसेस के मैजिक मिरर में नहीं दिखोगे। नेक्स्ट मॉर्निंग द प्रिंसेस टोल्ड हिम दैट ही वाज हाइडिंग इन द हिल्स। फिर अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन the young man went to the palace, again the principal told his the hiding place. उसने बता दिया कि yes, you were hidden in the remote area of hilly region. One chance more, but it will be the last chance, he warned. इस बार लेकिन प्रिंसेस ने फिर से उसको एक और चांस दे दिया, बोला कि ठीक है मैं तुम्हें एक चांस और देती हूँ क्योंकि यू सीम्स मी एन इंटरेस्टिंग पर्सन, तुम मुझे एक इंटरेस्टिंग पर्सन दिख रहे हो, सो आई विल गिव यू वन मोर चांस, बट दिस विल बी योर लास्ट चांस। He returned to the forest and called for the jackal and narrated his sad story. इस टाइम वो फिर से फॉरेस्ट में बैक हुआ और इस बार उसने जैकल को बुलाया, जिस जैकल को उसने हंटर से बचाया था। तो इस बार जैकल को बुला करके उसने अगेन ही नैरेटेड द होल स्टोरी टू द जैकल। ओ मास्टर डोंट वरी, आई विल डू माय बेस्ट, अस्योर्ड द जैकल। इस बार जैकल ने उसे क्या कहा, ओ माय डियर मास्टर प्लीज डोंट वरी, I will give you assurance. I assured you that I will do my best. मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दिखाऊंगा और मैं आपको छिपा कर ही रहूंगा, ऐसी जगह छिपाऊंगा कि वो प्रिंसेस आपको ढूंढ नहीं पाएगी। The jackal for his fellow jackal
and within no time there were hundred of jackals all around him. इस बार जैकल ने क्या किया, उसने आवाज दे करके अपने बहुत सारे जैकल्स को बुलाया और बहुत ही कम समय में वहां पे देयर वेयर मोर देन 100 और जैकल्स, अगल बगल पूरे जंगल में जितने जैकल्स थे लगभग 100 से भी ऊपर जैकल्स वहां पे कुछ ही सेकेंड में विद इन नो टाइम वहां पर पहुंच गए. ऑल वेर कम ओनली टू हेल्प द young man. They proposed that the young man should hide himself under the princess bed. How could he reach there without the knowledge of the princess? अब वहां पे क्या हुई, जंगल में एक मीटिंग बैठा कि क्या प्लान बनाया जाए ऐसा कि जिस तरह से इस हेल्पफुल यंग मैन को हम लोग छिपा सकते हैं उस प्रिंसेस के मिरर के रिफ्लेक्शन से. ऐसा किस जगह पे इसे छिपाया जाए कि उस प्रिंसेस के मिरर रिफ्लेक्शन से इस हेल्पफुल यंग मैन को बचाया जा सके. बिकॉज वो कहीं भी जा रहा था, कहीं भी छिप रहा था, तो हेल्पफुल यंग मैन का जो मिरर था उस प्रिंसेस का जो मिरर था वो उसको कहीं भी ढूंढ ले रहा था. तो इस टाइम जाकर लोगों की एक मीटिंग बैठी फॉरेस्ट में एंड दे ऑल वेयर डिसाइडिंग दैट वेयर टू हाइड द यंग मैन. सो मीटिंग में कंक्लूजन वाज that we will hide the young man under the bed of the princess. Where they will hide the young man? They will hide the young man under the bed of the princess. हम लोग जो है हेल्पफुल यंग मैन को प्रिंसेस के बेड के नीचे छिपा देंगे. But the most important question was arised that how to hide the young man under the bed of the princess without having knowledge of the princess. बिना प्रिंसेस को पता चले कैसे हम लोग प्रिंसेस के बेड के नीचे इस हेल्पफुल यंग मैन को छिपा सकते हैं. दैट वाज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कंसर्निंग क्वेश्चन. इवन it was planned that a tunnel should be dug. Now the planning proceeded forward and it was planned that they will dug a tunnel. उन लोग का प्लान आगे बढ़ा और उन लोगों में यही डिसाइड हुआ दैट वो लोग एक टनल गुफा बनाएंगे. कहां से कहां तक? इन द इट्स अदर एंड शुड बी राइट अंडर द बेड ऑफ द प्रिंसेस. वो लोग एक टनल बनाएंगे जो फॉरेस्ट से होकर के सीधे कहां खुलेगा? प्रिंसेस के बेड के नीचे जाकर के खुलेगा. द प्लान वाज एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली एंड द यंग मैन वाज राइट अंडर हर बेड. प्लान को एग्जीक्यूट किया गया और इमीडिएटली एग्जीक्यूट किया गया. इट मींस कि हंड्रेड्स ऑफ जैकल्स ने मिल करके immediately they dug the tunnel and they connected the tunnel to the princess bed. उन्होंने बेड तक एक टनल खोद दिया और plan was executed and the helpful young man was reached under the bed of the princess without having any knowledge to the princess. The princess woke up, took the magic mirror in her hand and rotated it. Now in the night the princess again took up her magic mirror. उसने अपना मैजिक मिरर फिर से उठाया और उसे सारे डायरेक्शन में रोटेट करने लगी. आप लोग बताइए, आप लोगों को यहाँ तक सभी समझ में आ रहा है? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन यहाँ तक? सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, let's proceed forward. Switch off your mic, all of you. Sumant Maharaj, class 6C. Switch off your mic. Yes. Okay. So, रात में प्रिंसेस उठी और उसने अपने मिरर को सभी डायरेक्शन में घुमाना शुरू कर दिया. But to her astonishment, she could not trace the young man. But ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग थिंग था कि सारे डायरेक्शन में रोटेट करने के बाद भी प्रिंसेस को वो यंग मैन कहीं नहीं देखा. सभी जगह पे उसने रोटेट करके देख लिया, बट द रिफ्लेक्शन ऑफ द यंग मैन was not appeared in the magic mirror of the princess, and it was a matter of great concern for the princess. How she is not able to recognize the how she is not able to get the appearance of the young man in her magic mirror. She could not trace the young man. वो young man को रात भर भी कोशिश की फिर भी ट्रेस नहीं कर पाई. She repeated the process a number of times but in vain.
उसने इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया, बार बार अपने मैजिक मिरर को लेकर के सभी डायरेक्शन में घुमा रही थी, बट सारी मेहनत उसकी बेकार गई, ऑल इन वेन, सारे मेहनत पे पानी फिर गया, बिकॉज सी गॉट नो रिजल्ट, उसे कोई उसका फायदा नहीं हुआ, कोई रिजल्ट उसे उसका नहीं मिला। एट लास्ट सी गॉट सिक ऑफ दिस जॉब, बार बार एक ही प्रोसेस को करते करते, बार बार एक ही काम को करते करते वो थक गई और उसने मिरर को छोड़ दिया। सी स्मैश द मिरर अगेंस्ट द लैम्प पोस्ट, और गुस्से में जब उसके मिरर ने उसका साथ नहीं दिया, उसके मिरर ने उस यंग मैन के रिफ्लेक्शन को खोज नहीं पाया, तो उसने गुस्से में क्या किया, अपने मिरर को जोर से लैम्प पोस्ट की तरफ फेंक दिया। कम आउट यंग मैन, आई हैव लॉस्ट द गेम, सी क्राइड, वो चिल्ला करके बोली, बाहर आ जाओ यंग मैन, मैं आई हैव लॉस्ट द गेम, मैं गेम हार चुकी हूं, तुम जीत गए, तुम बाहर आ जाओ। द नेक्स्ट मॉर्निंग द यंग मैन केम आउट फ्रॉम अंडर हर बेड, नेक्स्ट मॉर्निंग जो यंग मैन था वो उसके बेड के नीचे से निकला। द प्रिंसेस वॉज सरप्राइज्ड एट हिज इंटेलिजेंस, प्रिंसेस जो थी वो एकदम सरप्राइज हो गई उसको देख के, अरे हम इसको सारे डायरेक्शन में देख लिए, सारी दुनिया में खोज लिए, कहीं नहीं मिला, और ये कहाँ मिला, निकला तो निकला मेरे बेड के नीचे से निकला। वो सरप्राइज हो गई उसके इंटेलिजेंस पर। सी एक्सेप्टेड हर डिफीट एंड एग्रीड टू मैरी हिम, उस दिन द प्रिंसेस वॉज एक्सेप्टेड हर डिफीट, उसने अपने हार को मान लिया, एंड शी मैरिड विथ द यंग मैन। देयरआफ्टर द यंग मैन लिव्ड हैप्पी विथ हिज वाइफ हैप्पीली, उसके बाद क्या हुआ, जब वो लोग दोनों की शादी हो गई तो यंग मैन जो था उस प्रिंसेस से शादी करके उस दिन के बाद से दोनों बहुत खुशी खुशी रहने लगे। और आपको तो पता ही है कि इनके भाई, इसके बाकी 6 भाइयों ने इसे अपने घर से निकलवा दिया था, सिर्फ प्लानिंग करके कि कहीं प्रॉपर्टी का हकदार ये ना बन जाए, तो इस प्रिंसेस से शादी करके नाउ ही बिकेम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ दैट किंगडम। सो नाउ स्टोरी इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so your homework is just go through the chapter, the whole chapter, underline all the tough words of this chapter, and write that tough word in your notebook, and with the help of your dictionary try to search the synonyms of that tough word and write it in your notebook too. आपको इंग्लिश वर्ड मीनिंग उसके खोज करके विद द हेल्प ऑफ द डिक्शनरी आपको अपने नोटबुक में नोट कर लेने हैं। along with that there is one more homework, take out page number 35, all of you take out page number 35, निकाल लिए सभी लोगों ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay see question number 3, life skill, दिख रहा है आप Yes, लोगों ma'am. को? Yes, ma'am. Given below are some adjectives on the basis of your comprehension of the story. Put these in appropriate box under suitable characters. You can also add some more adjective. नीचे येलो बॉक्स में आपको कुछ एडजेक्टिव के वर्ड्स दिख रहे होंगे, कुछ एडजेक्टिव्स दिख रहे होंगे, और उसके नीचे पिंक बॉक्स में, पिंक कॉलम में आपको पिंक बॉक्स में 4 कॉलम दिख रहे होंगे, द यंग मैन, हिज ब्रदर, द 3 एनिमल्स एंड द प्रिंसेस। ये दिख रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है कि इस येलो बॉक्स में जितने भी एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, जितने भी क्वालिटी दिए हुए हैं, वो आपको नीचे वाले पिंक बॉक्स में फिल करना है कि किसका क्या कैरेक्टर था। जैसे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट इसमें से कौन था वो आपको बताना है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कौन थी? प्रिंसेस थी। क्रूएल, क्रूएल कौन था? ये सब सभी बात आपको बताना है। द हेल्पफुल यंग मैन, हिज ब्रदर, द 3 एनिमल्स और द प्रिंसेस के लिए आपको सारे एडजेक्टिव्स को फिल करना है। दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू इन द बुक इटसेल्फ, ठीक है? सो दिस इज योर होमवर्क। समझ में आ गया सभी को? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. यस, इसमें आप अपने तरफ से भी इसमें आप अपने तरफ से भी कुछ एडजेक्टिव्स जोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। जैसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, यू कैन ऑल्सो एड सम मोर एडजेक्टिव्स। किसका माइक ऑन रहता है, बार बार ऑफ करना भूल जाता है? काव्या कुमारी, माइक तुरंत ऑफ करिए, कुछ बोलिए और फिर तुरंत माइक ऑफ करिए। तो
ये जो बॉक्स है इसमें आप पहले तो एडजेक्टिव जो येलो बॉक्स में दिया है उसको फिल कर दीजिएगा। उसके बाद अगर कोई एडजेक्टिव आपको और लगता है कि इनमें से किसी के लिए हम डिनोट कर सकते हैं, यू कैन ऐड सम मोर एडजेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 34 में देखिए क्वेश्चन नंबर बी दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, क्वेश्चन नंबर बी ये भी आपको करना है इन द रफ कॉपी। रफ कॉपी में ये क्वेश्चन आपको बनाना है। क्या करना है? That I am explaining you. Given below in the box is the story you have read in a jumbled form. Given below में आपको कुछ बॉक्स दिख रहे होंगे, उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, वो पूरा होल स्टोरी लिखा हुआ है जो अभी हम लोगों ने समझा। बट ऑल दीज सेंटेंसेस आर इन जम्बल्ड। उसको रीअरेंज आपको करना होगा। रीअरेंज करके रिकंस्ट्रक्ट करके आपको स्टोरी इसको बनानी है। कौन सा पहले हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एंड जब आप वो स्टोरी क्रिएट कर लोगे देन यू हैव टू राइट द स्टोरी इन योर नोटबुक। समझ में आ गया आपको? Yes, ma'am. Yes. उसके बाद क्या करना है? यस, उसके बाद स्टोरी बनाने के बाद क्या करना होगा? इसी क्वेश्चन का एक फिगर आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 35 में दिख रहा है ऊपर में। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. इसमें आपको क्या करना है कि आपको बस एक मैप ड्रॉ करना है, मतलब एक आपको वे रास्ता बनाना है कि जो हेल्पफुल यंग मैन था वो सबसे पहले किसके पास गया हेल्प के लिए, उसके बाद किसके पास गया, उसके बाद किसके पास गया, और किस तरह से वो फाइनली उसके प्रिंसेस के बेड तक पहुंचा। तो सबसे पहले आपको इसमें मैपिंग बना करके ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो, मतलब रास्ता बना लेना है, वो आप इसी में कर लीजिएगा बुक में ही। बस क्वेश्चन नंबर बी का जो लिखने वाला काम है वो आपको रफ नोटबुक में करना है। इज दैट क्लियर? क्या क्या होमवर्क है? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. And in the next class, whenever we will have our next class, we will discuss चैप्टर 6 तो हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन 6F में शायद कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ चैप्टर 4 नहीं हुआ है। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर, द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। ओके, वी विल डिस्कस द स्टोरी ऑफ चैप्टर 4 Yes, माय ma'am. एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Okay ma'am. then. So, is there any doubt? Is there any doubt regarding today's class to anyone? No, ma'am. No. Okay then, that's it for today's class. Again, we will meet in the next class. Thank you and have a nice day. Bye bye to Bye. all of you. Bye, Bye, ma'am. ma'am.